العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم. طلبہ عزیز، آج کے اس محاضرے کا عنوان ہے تحقیقی مقالہ نویسی، کامیاب علمی کاوش کا راز۔ آج کے ہمارے اس محاضرے میں صدر کی حیثیت سے ہم نے دعوت دی ہے ہم سب کے استاد محترم، مشہور و معروف عالم دین، مفسر قرآن حضرت مولانا وسیع سلیمان ندوی دامت برکاتہم کو وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اس محاضرے کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت مولانا دامت برکاتہم کے کلمات سے بھی استفادہ کریں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یقیناً تحریر و تقریر کے میدان میں آپ کا ایک بڑا مقام ہے، اور خاص طور سے ایک لمبے عرصے سے 32 سال کے عرصے سے یہاں خلد سے جامعہ امام ولی اللہ اسلامیہ سے جامعہ کے ترجمان ارمغان شاہ ولی اللہ کے نام سے ایک ماہانہ بڑی پابندی کے ساتھ میں آپ کی ادارت میں نکل رہا ہے، اس کے اداریے سے لے کر اور آخری صفحے تک مکمل تیاری آپ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ تو یقیناً آج کے اس محاضرے کی صدارت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ موضوع کوئی دوسری شخصیت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ مولانا ہمارے درمیان تشریف فرمائے، اور ان کا قیمتی وقت تھا اور یہ چھٹی کا وقت تھا ان کی، ہم نے درخواست کی تو وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہ قیمتی وقت انہوں نے ہمیں دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ مقالے کا عنوان جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا، تحقیقی مقالہ نویسی، کامیاب علمی کاوش کا راز ہے۔ مقالہ لکھنا ایک اہم علمی سرگرمی ہے جو طلباء کو تحقیقاتی مہارتوں کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس محاضرے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کو ایک مکمل اور معیاری مقالہ لکھنے کی رہنمائی فراہم کی جائے تاکہ وہ مستقبل میں اچھے محقق کی حیثیت سے متعارف ہوں، فن تحقیق میں ان کو ملکہ حاصل ہو، اور کہیں بھی کسی بھی میدان میں اگر وہ مقالہ لکھیں تو جو اصول اور ضابطے ہو سکتے ہیں مقالہ نگاری کے، اس کے مطابق وہ ان کے سامنے آج کی جو گفتگو ہوگی وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انشاءاللہ مفید اور کارگر ثابت ہوگی۔ اس میں اس پورے محاضرے کو ہم نے الگ الگ کئی عناوین پر تقسیم کیا ہے، اس کے الگ الگ موضوع رکھے ہیں۔ انشاءاللہ نمبر کے اعتبار سے ہم بات چیزیں آپ کے سامنے اس میں رکھیں گے۔ تحقیق کا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو مقالہ لکھ رہے ہیں وہ کیوں لکھ رہے ہیں اور کس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ آخر ضرورت کیا پیش آئی کہ آپ مقالہ لکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں جیسے آپ اب فی الحال تو چونکہ اب مخاطب حضرات ہیں ہمارے، تو اسی اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم طالب علم میں یہاں ادارے کے اندر پڑھتے ہیں اور ہمارے یہاں کوئی عنوان متعین کیا گیا اور اس پر مقالہ نگاری کرائی جا رہی ہے۔ ایک تو شکل یہ ہوتی ہے، ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ سالانہ انعامی مقابلوں کے لیے ہم سے مقالہ لکھوایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو مقالہ ہم لکھنے جا رہے ہیں اس کا مقصد متعین ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں لکھ رہے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو مثال کے طور پر ابھی ہم ابتدائی مرحلے میں ہم طالب علم میں مثال کے طور پر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ہمارے اساتذہ ہمارے بڑے ہمیں مقالہ لکھنا سکھانا چاہتے ہیں، تو ابھی ہم ابتدائی مرحلے میں ہم مقالہ لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے اصول اور ضوابط کا علم ہونا چاہیے تاکہ سیکھنے کے مرحلے میں بھی اگر ہم سے کوئی کوتاہی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہمارے اساتذہ ہمارے نگراں حضرات اس کی اصلاح کریں۔ یہ ایک بنیادی مقصد ہوا جو اس وقت یہاں پر ہمارے سامنے ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایک موضوع ہوا کرتا ہے کہ مقالہ آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا میدان ہے، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں مقالہ لکھنے کے۔ آپ کا ایک مقصد ہے کہ آپ کو سالانہ انعامی مقابلوں میں اپنے مقالہ پیش کرنا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں سے سبقت لے جاؤں اور میری اول پوزیشن آ جائے۔ یہ ایک مقصد ہے، اس لیے مقالہ لکھا جا رہا ہے، ادارہ ہم سے مقالہ لکھوا رہا ہے، ہم تربیت کے مرحلے میں ہیں اور ہم ادارہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے مقالے کے اصول اور ضوابط کے مطابق
मकाला लिखा है या नहीं है, हमें मकाला लिखना आ गया है या नहीं आ गया है, हम मकाला सीखने के मरहले में हैं तो किस हद तक हम आगे बढ़ गए हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हो सकती हैं। अब आप देखिए कि सबसे अहम चीज़ होती है जो मकाला आप लिखते हैं उसके मौजू का इंतखाब, कि आप किस मौजू पर मकाला लिखने जा रहे हैं। उस मौजू का इंतखाब इसलिए कराया जाता है कि आप ये समझें कि इस मौजू पर मैं काम करूँगा तो इसकी ज़रूरत भी है या नहीं है। जो मकाला मैं लिखना चाहता हूँ इसकी ज़रूरत भी है नहीं। सैकड़ों किताबें हैं किसी मौजू पर, आपने भी एक उन्वान लिख दिया जी मैं इस पर लिखूँगा। मिसाल के तौर आपने एक दो किताबें देखी, आपको लगा ये आसान है, आपने वही उन्वान मुंतखब कर लिया, लेकिन आप उस मौजू पर मकाला लिख कर करेंगे क्या जिस मौजू पर पहले बहुत सी किताबें मौजूद हैं, या जिस मौजू पर बहुत सारे लोग लिख चुके हैं और आपसे पहले लिख चुके हैं, आपके सीनियर्स लिख चुके हैं, आपके अकाबिरीन लिख चुके हैं, तो आप उसमें नई क्या चीज़ लिखेंगे? क्या आपके अंदर कोई ख़ास सलाहियतें हैं जो आप पुराने लोगों के मुकाबले में कुछ अच्छा पेश करना चाहते हैं? ऐसा भी होता है, लेकिन बिलउमूम ऐसा नहीं है कि आप किसी पुराने आदमी की तहरीर के मुकाबले में कोई नई चीज़ पेश करने जा रहे हो। ऐसा कमी के साथ होता है, बहुत बात होते हैं जिनमें ऐसा होता है, और इसीलिए नई नई किताबें वजूद में आती हैं, आने वाले उस मौजू को आगे बढ़ाते हैं और नए से नया लिखते हैं। तर्ज और अंदाज यही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस मौजू का इंतखाब कर रहा हूँ उसमें मुझे ज़रूरत है कि इस मौजू पर काम होना चाहिए, इस मौजू पर काम होना चाहिए। इस मौजू पर जो चीज़ें अब तक लिखी जा चुकी हैं, जो काविशें आ चुकी हैं, वो नाकाफ़ी हो रही है। अब ज़माने की रफ्तार के एतबार से इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए अपने काम को, और इसमें हमें फला फला चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं ये मौजू चुन रहा हूँ, इस तरह में इस मौजू का इंतखाब कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर इफ्ता के तलबा को हमने मौजू चुनने के लिए दिया, और रहबरी और रहनुमाई के लिए हमने 20-25 अनावीर खुद लिख करके दे दिए कि अभी आप चूँकि इब्तिदाई मरहले में हैं, और बाज़ साथी तो ऐसे होंगे यकीनन कि उनके सामने इस तरह का मौजू कोई आया नहीं होगा मकाले निगारी से मुताल्लिक, तो हमने आपकी सहूलत के लिए, वक्त बचाने के लिए आपको खुद ही कई मौजू दे दिए कि आप इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लीजिए। अब आपने अपनी सवातीस से, अपनी सहूलत से ये देखा कि मेरी दिलचस्पी का मौजू क्या है जिस पर मैं लिख सकता हूँ। ये अहम चीज़ होती है। आपको मौजू में दिलचस्पी नहीं है तो आप यकीनन आपके लिए उलझन का बाइस होगा, आप परेशान होंगे, उस मौजू से आपको लगाव नहीं हो रहा है और आप उस मौजू से करीब नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ना मुताला उसके बारे में कर पाएंगे और ना कुछ लिख पाएंगे, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो उस मौजू से जिस पर आपको दिलचस्पी हुई, आपने उस मौजू का इंतखाब कर लिया, आपने उसके लिए चुन लिया। तो इसी तरह से मौजू का इंतखाब बहुत अहम मसला होता है, और उसमें बुनियादी चीज़ होती है कि इल्मी ज़रूरत के एतबार से आप उसको देखेंगे कि इस वक्त इल्मी लिहाज से इसकी ज़रूरत है नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दो मौज़ूआत के बारे में बताऊँ। एक मौजू आपको दिया गया जानवरों के हुकूक और अहकाम, जानवरों के हुकूक और अहकाम। ये कोई नया मौजू नहीं है, इस पर ज़माने कदीम से फुक़हा ने अपनी आरा का इजहार किया है, और बहुत सारे मसाइल हैं इसके ताल्लुक से, और पूरी फ़िक़्ह की किताबें इसके जो है अंदर भरी पड़ी हैं, और सब जगह जानवरों के हुकूक के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। लेकिन मौजूदा ज़माने में जबकि साइंस बड़ी तरक्की कर रही है, मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, ऐसे हालात में जानवरों के हुकूक मुतासिर होने लगे। अब साइंस तरक्की कर रही है और हमें पता चल गया कि भाई जानवरों को किसी भी तरह से, चूँकि अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया है, जानवरों को किसी भी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें हक़ शरीयत ने हमें हक़ दिया है, हत्ता के ज़बा करके उनको खा भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, बल्कि जानवरों के भी हुकूक शरीयत ने मुतय्यन किए। बाद मौके पर जानवर को आप अजियत नहीं दे सकते, या सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने काम के लिए जानवर को अजियत में मुब्तला नहीं कर सकते। तो इससे क्या उसूल दवाबित हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर तलक़ीह का एक मसला आजकल चल रहा है। एक जानवर के एक नस्ल के जानवरों की जुस्ती दूसरी नस्ल से कराते हैं, और उससे तीसरी नस्ल पैदा करने की कोशिश है। उसके पीछे बहुत से मकासद होते हैं। कभी कभी बाद नस्लें खत्म हो रही तो उनकी नस्लों को बचाने के लिए कोई और तरीका नहीं है तलक़ीह के अलावा, तो तलक़ीह का अमल कराया जा रहा है। बाद नस्लों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत ताकतवर बनाने के लिए मजीद तलक़ीह का अमल कराया जा रहा है, उसकी ज़रूरत पेश आ रही है। जदीद ऑपरेशन वगैरह, जैसे इंसानों से पहले, इंसानों का कोई ऑपरेशन करना है, उससे पहले जानवरों का अमल जराहत से गुजारा जाता है, जानवरों पर उस अमल को करते हैं, जानवरों पर तजुर्बा करते हैं। जब तजुर्बा कामयाब हो जाता है उसके बाद इंसानों पर उसको जो है वो इंसानों के ऊपर उस अमल को जारी किया जाता है। ये तरीका है। तो उसके हुकूक है और अहकाम है। तो हमने एक मौजू दिया कि अब इस मौजू को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमें नए चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना है, तो उसका शरई हल इसके ज़रिए से हम पेश कर सकते हैं। तो एक पुराना मौजू था, नई ज़रूरतें हैं,
उन नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने पुराना मौजूद ले लिया है और उसको नए कॉलम में डालकर हम इंशाअल्लाह पेश करेंगे। ये मकसद हो गया हमारा। लेकिन एक नया मौजूद भी हमारे सामने, उसकी भी मिसाल देता हूँ आपको। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत बिल्कुल नई चीज़ है, अभी दुनिया में मुतारफ हुई है। ख़ास तौर से हमारे मुल्क में तो अभी हाल ही में आई है, इससे पहले और जगह चल रही है। तो AI आ गया। अभी AI जो है ये एक यानी तरक्की का एक अजीब व गरीब किस्म का सीना है। जो तरक्की सदियों में इंसान ने नहीं की थी, वो AI के ज़रिए से मिनटों सेकंडों के अंदर कहीं से कहीं चीज़ें पहुँच रही हैं। नए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं, नई नई शक्लें जो है सामने आ रही हैं। जो काम इंसान कर रहा है अब तक, एक रोबोट उसको अपने तौर पर समझकर अपनी फहमो फिरासत से उस काम को अंजाम दे रहा है और इंसान से 1000 गुना बेहतर अंजाम दे रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत पेश आएगी कि क्या बहुत से काम हम रोबोट के जरिए से ले सकते हैं? क्या इमामत अगर रोबोट करेगा AI के जरिए से, क्या इमामत उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ होगी? क्या अमल जर्राही के लिए हम मशीनों के ऊपर इंसान के बदन को जिस्म को छोड़ देंगे कि जिस तरह से चाहे मशीन उसके साथ में अमल करे? अगरचे हमें यकीन है कि रोबोट इंसानों की तरह से इलाज करेगा, लेकिन क्या शरीयत इस बात की इजाज़त देगी कि इंसानी जिस्म को मशीनों के हवाले कर दिया जाए? क्या टेप रिकॉर्डर की तरह से अजान को AI के जरिए से हम वक्त मुतायन कर दिया जाए, 5:03 पर फलां वक्त की अजान होगी, वो वक्त खुद देखेगा और 5:03 1 सेकंड पहले नए सेकंड बाद बहुत बेहतरीन और उम्दा और आला किस्म की अजान देगा। AI के जरिए से क्या अजान दिलवाई जा सकती है? ये एक मौजूदा शक्ल है, अभी हमारे इंट्रोड्यूस हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आई हैं, न जाने आगे चल करके क्या क्या चीज़ें, क्या क्या शक्लें खुल करके सामने आएंगी। तो हमने एक नया मौजूद लिया और हमने ज़रूरत महसूस की कि अब ज़माने को ज़रूरत पेश आएगी इस बात की कि AI के बारे में बता दिया जाए। मिसाल के तौर पर अभी हम गूगल से सर्च करते हैं, हमने गूगल के ऊपर एक मसला लिखा कि विरासत में फला फला मरहूमीन है, फला फला लोग हैं, कि कैसे तकसीम होगा। अब गूगल के ऊपर जितनी भी किताबों की PDF पढ़ी हुई है या किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, गूगल उसको सर्च करेगा, आपको ला करके पेश कर देगा। लेकिन इससे कहीं और आला मेयारी किस्म का AI के जरिए से वो आपके मसलों को हल कर रहा है। आपकी शरई जायदाद जैसे जैसे रुपयों में, सिक्कों में, हर एतबार से मुकम्मल तौर पर तकसीम करके आपको दे रहा है, पूरी तकसीम करके आपको देगा वो। तो क्या जब आप AI से कोई मदद तलब कर रहे हैं, AI से आपने एक मवाद उठाया है कहीं से, तो क्या आपको ये बताना पड़ेगा शराब कि मैंने AI के जरिए से लिया है, चैट GPT से मैंने इसको लिया है, या उसको आप अपनी तरफ मंसूब करके आगे बढ़ा सकते हैं? ये शरई मसला है, आपको इसका हल बताना पड़ेगा। क्या ये सरके के अंदर नहीं आता है? अब आप इसके पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल की तरह से चैट GPT काम नहीं करता है, बल्कि पूरे नेट पर जितना भी मवाद जहाँ कहीं जिस सूरत में फैला हुआ है, वो उसकी मालूमात इकट्ठी करता है और मालूमात फराहम हो जाने के बाद अपने अल्फाज में और अपनी ज़बान में अपने कालम में ढाल करके वो आपको जवाब देता है। अगर आप उसका मैच करना चाहें तो किसी किताब से कहीं पर भी वो मैच नहीं होगा। यानी अगर आप चाहें तो बआसानी आप दूसरे की थॉट और उसकी फिक्र को चोरी करके पेश कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरा फिक्रा है, मेरी सोच है अपनी, हालांकि वो आपकी नहीं है, आपने चैट GPT से ले लिया या आपने फला काम कर लिया है। तो क्या ऐसे मौके पर आपको जरूरत पेश आएगी इस बात की वजाहत करने की? क्या ये सरके के अंदर नहीं आएगा? तो इस तरह के मसाइल और इस तरह की चीज़ें जब हम उसका डीपली मुताला करेंगे और उसके अंदर जाएंगे तो हमें चीज़ें नौयत से सामने आएंगी। तो एक मौजू हमने दिया, तो इंतखाब मौजू का बहुत अहम मसला है और इनकी ज़रूरियात की तकमील, ताकि वक्त पर हम इंसानी ज़रूरतों को मुकम्मल तौर पर पूरा कर सके। इसी तरह से मौजू का इंतखाब करते वक्त उसकी अहमियत क्या है और उसके असरात क्या पड़ेंगे, ये भी गौर करने की चीज़ है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि भाई इसकी ज़रूरत पेश आएगी, अब AI के बारे में पता होना चाहिए, जानवरों के हुकूक के बारे में पता होना चाहिए। आज दुनिया चाहती है कि मैं सूदी कारोबार से, उस सूदी निज़ाम से किस तरह से बच जाऊँ। सारी दुनिया में सूदी निज़ाम चल रहा है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ है, मुझे उसका भी पता होना चाहिए। तो हमने एक मौजू लिया कि इस्लामिक बैंकिंग के उसूल दाब्ते क्या हैं, हम उसके ऊपर भी जो है वो लिख सकते हैं। ये एक शक्ल हमारे ऊपर हमारे लिए सामने आ गई। तो उसकी अहमियत भी मौजू के सामने होनी चाहिए, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें किसी किस्म का हम अंदरूनी तौर पर ये महसूस न करें कि भाई जब ये मार्केट में हमारा मकाला आएगा या मौका होगा, हमारी ये मकाला तबाह हो जाएगा, छप जाएगा, तो किसी के लिए फ़ायदेमंद भी होगा या नहीं होगा। या किसी के हाथ में जाएगा तो लोग इसको लेकर कहेंगे भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस पर लिखने की, इस पर तो फला साहब ने इतना अच्छा काम कर दिया, आप तो ज़रूरत ही नहीं थी इस काम को करने की। तो खुद भी इत्मीनान होता है इससे कि हम उस पर गौर करें कि उसके मुमकिन असरात क्या होंगे और किस तरह से
اس کی اہمیت ہوگی اس کو ہم خود بھی محسوس کریں. یہ بہت اہم چیز ہے.